President in exercise of the power under Article 370, Clause 3 is constitutionally invalid in the absence of a recommendation of the Constituent Assembly of the State of Jammu and Kashmir as mandated by the proviso to Clause 3. E. Whether the proclamation of the Governor dated 20 June 2018 in exercise of power conferred by Section 92 of the Constitution of Jammu and Kashmir and the subsequent exercise of power on 21 November 2018 under Section 53(2) of the Constitution of Jammu and Kashmir to dissolve the Legislative Assembly are constitutionally valid. अब कोर्ट में फैसला सुनाया जाना शुरू हो चुका है। देखिए 5 जजेस की जो बेंच है वो बैठ चुकी है और सीधे बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं। गौरव श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या अपडेट है? फैसला सुनाना शुरू हो चुका है जी। Whether the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। देखिए, सबसे पहले दर्शकों को जानकारी दे दें कि ये 5 जजों की संविधान पीठ थी और इसमें जो फैसला आ रहा है वो 3 अलग अलग फैसले आएंगे। इसके बारे में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है। पहला जो जजमेंट है वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं और उसका जो मुख्य पार्ट होगा, एसेंस जो होगा, सारांश जो होगा वो चीफ जस्टिस बताएंगे और ये फैसला जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत के साथ साझा होगा। इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना का एक अलग फैसला है और इसके अलावा जस्टिस संजय किशन कौल इनका एक अलग फैसला है। तो कुल 3 फैसले जो हैं वो यहां पर पढ़े जाएंगे और सबसे पहला जो फैसला है वो जस्टिस चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का पढ़ा जा रहा है और वो फिलहाल अपने हिस्से का जो फैसला है उसका जो सारांश है उन्होंने फिलहाल पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, और जैसा कि तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। अब ये देखने वाली बात है कि जिस तरह से इस 370 को लेकर जो तमाम याचिकाएं लगाई गई थी उन याचिकाओं पर क्या कुछ बातें कही जाती हैं, तमाम तरह की दलीलें इन याचिकाओं में दी गई थी और उन तमाम दलीलों के माध्यम से 370 पर लिया गया फैसले को लेकर चुनौती दी गई थी। आर्टिकल 370 पर सीजीआई फिलहाल फैसला पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 370 पर ये जो आज का फैसला है ये कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ दिल्ली में यहाँ पर फैसला सुनाया जा रहा है तो घाटी में भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में हम देखते हैं सुरक्षा बल डिप्लॉय किया गया है, खासतौर से ऐसे इलाके जो काफी ज्यादा सेंसिटिव जोन में आते हैं। कई नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें नजरबंद किया गया है। हालांकि इन तमाम चीजों को दूसरी तरफ से जो हायर अथॉरिटीज है वो दरकिनार कर रही है। अब आखिर क्या कुछ होता है, अपने आप में ये बहुत अहम हो जाता है। ऐतिहासिक फैसला आएगा 370 जो बड़ा निर्णय लिया गया था, खासतौर से उसको लेकर ये तमाम चुनौतियां दी गई। सुनिए जरा। Specific actions which were taken when the proclamation was in force on the ground that those actions breached the constitutional limitations on the exercise of power after a proclamation under Article 356 is issued. These substantive challenges which form the fulcrum of the case of the petitioners have been considered. Next issue, whether there are limitations on the exercise of power by the President or Parliament under Article 356. We have held that there are limitations on the power which can be exercised by the union government in the state when a proclamation under Article 356 is in operation. We have reached the conclusion on the following grounds. A. The majority in S.R. Bommai, the 9-judge bench decision, held that the actions taken by the President after issuing a proclamation are subject to judicial review. However, the learned judges adopted slight variations on the standard needed to be applied by the court to test the validity of the exercise of power by the President after the issuance of the proclamation. Justice Sawant applied the standard of whether the exercise of power was mala fide or palpably irrational. Justice Reddy observed that the advisability and necessity of the action must be borne in mind by the President. 2. This bench, sitting in a combination of 5 judges, is bound by the decision of the majority in S.R. Bommai on the issue. We also undertook a textual and purposive reading of Article 356 in particular and Part 18 as a whole. We hold that there are limitations on the power exercisable after a proclamation under Article 356 is issued. The following are our reasons. First, the thread that runs through Part 18 of the Constitution, when read as a whole, is that differing levels of executive and legislative power are required to handle an emergency under Article 352 and under Article 356. This principle applies to the exercise of power when a proclamation under Article 356 is in force. Second, Article 356(1) states that the President may, by a proclamation, assume or declare the powers stipulated in clauses A, B, and C of Article 356(1). The powers stipulated in clauses A, B, and C of Article 356(1)
are not automatically invoked when a proclamation is issued. तो आप ये under देखिए Article सीजीआई अपनी बात रख रहे हैं, जो फैसला सुनाया जा रहा है उसमें पहले सीजीआई ने क्या कुछ फैसला दिया है वो सामने रख रहे हैं। गौरव, बड़ी बात है, बताइए जल्दी से। The phrase all or any does not indicate that the union government can exercise. देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब कोई भी इस तरह का बड़ा आदेश जो है या जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है तो सबसे पहले आदेश की आउटलाइन रखी जाती है, यानी कि किन किन बिंदुओं पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो है विचार किया और जो आदेश है वो इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द रखा गया। फिलहाल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने आदेश की आउटलाइन बता रहे हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या जो राष्ट्रपति शासन जो है 2018 में लगाया गया था जब वहां पर सरकार गिरी थी और उसके बाद वो राष्ट्रपति शासन लागू था, और उस दौरान क्या सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश से धारा अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया जा सकता था? क्या बिना संविधान सभा या जम्मू कश्मीर की विधानसभा के बिना सहमति के इस तरह का फैसला डायरेक्ट लिया जा सकता था? और क्या अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला या उसकी जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से संवैधानिक थी? इसी को जो है चुनौती दी गई थी और ये जो पूरा आदेश जो सुप्रीम कोर्ट का होगा वो इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट को जो है इस मामले में वैलिडिटी चेक करनी थी। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अंतिम फैसले पर जो है कि मुहर जो लगी, क्या वो पूरी तरह से संविधान के दायरे में आता था? और साथ ही साथ जो संविधान सभा की बात बार बार कही जाती है जो जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट करती थी, जिसने जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान बनाया, क्या अनुच्छेद 370 संविधान सभा के समाप्त हो गया? क्या अनुच्छेद 370 ये कहता है कि उसे खत्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? और अगर खत्म किया जा सकता है तो वो शक्तियां क्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पास थी या केंद्र सरकार उसे बिना संसद में किसी चर्चा के सीधे जो है खत्म कर सकता है? इन्हीं बिंदुओं पर जो है ये पूरा आदेश दिया जाएगा। और फिलहाल देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ उन्हीं जो बिंदुओं को है वो सामने रख रहे हैं और उसके बाद जो अपना ऑपरेटिव पार्ट है आदेश का उसको वो पढ़ना शुरू ठीक है गौरव, जैसे बड़ी बातें कोई बड़ा पॉइंट आए आप जरूर बताइएगा, लेकिन एक चीज और है, ये निश्चित तौर पर काफी बड़ी घड़ी है जम्मू कश्मीर के लिए, इस देश के लिए, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि इस देश में एक निशान एक संविधान नहीं। गौरव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं आपको यहाँ पर जो कि मुख्य न्यायाधीश पढ़ रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह मानना प्रासंगिक नहीं है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की घोषणा वैध थी या नहीं है। तो एक बड़ी बात जो है मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश की शुरुआत में कही है, जिसपे उन्होंने ये कह दिया है कि अनुच्छेद 370 को हटाने की जो घोषणा थी उसकी अब वैलिडिटी या उसके वैध और अवैध होने पर अब जो चर्चा करना है या उस पर किसी भी तरह का कानूनी आदेश जो है वो ज्यादा प्रासंगिक नहीं रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर जो फैसला देने से उन्होंने इनकार कर दिया, यानी कि जब वहां पर सरकार खत्म हुई और उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है वो दिसंबर 2018 में लगाया गया, उसकी वैधता पर मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल कोई भी फैसला देने से इनकार कर दिया गया है। और इसके पीछे वजह दी गई है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जो इस पूरे याचिका में उन्होंने अपनी गौरव, एक लाइन को आप एक्सप्लेन करिए जो आपने जानकारी दी है कि सीजीआई ने यह कहा कि यह मानना प्रासंगिक नहीं है कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने की घोषणा वैध थी या नहीं, इसका मतलब क्या? कृष्ण कुमार सिंह on whether the consequence of an ordinance. देखिए, इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर चूंकि प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, घोषणा के तरीके या घोषित करने के उन बातों पर नहीं दे रहे हैं। और इसको जो चीफ जस्टिस है अभी उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। एक अपडेट और आया है, इसमें मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा है कि जब भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। तो ये बात इस पर कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार जो है वो अपनी बातों को यहाँ पर जब अगर वो राष्ट्रपति शासन लागू कराया तो वो किन हद तक जो है किसी राज्य में इंटरफेरेंस कर सकता है, इसकी एक सीमाएं होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो है वो एक आउटलाइन ही रखा जा रहा है, ऑपरेटिव पार्ट का आना यहाँ पर बाकी है। शुरुआत हुई है, आदेश को पढ़ने की शुरुआत हुई है और थोड़ी
थोड़ी ही देर में मुख्य न्यायाधीश द्वारा क्या फैसला 370 को हटाने की प्रक्रियाओं को चुनौती देने को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उनको लेकर जो भी कहा गया था वो थोड़ी ही देर में पढ़ा जाना शुरू किया जाएगा। ठीक है गौरव, वो बड़ी बातें भी हम आपसे लगातार जानते रहेंगे, लेकिन इस बात को जरूर समझिए कि अभी तक जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया, उसका जो फैसला लिया गया, उसको कई तरह की याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी। तो उसमें से जो प्रमुख याचिकाएं हैं उस पर 16 दिन तक जो जिरा हुई, अब आज उस पर फैसला आ रहा है, फैसला सुनाया जा रहा है। राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसले से इनकार की बात यहां पर मुख्य तौर से टिप्पणी में कही गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें, जो फैसला है जो सुनाया जा रहा है उसकी एक एक लाइन जो है वो हमारे सहयोगी गौरव समझा रहे। गौरव और गौरव लगातार सुप्रीम कोर्ट मौजूद है और गौरव कोई और बड़ी जानकारी आई है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मुख्य न्यायाधीश ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य की तरफ से, राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिया गया हर निर्णय, यानी कि किसी राज्य के लिए संघ की ओर से, यानी कि यूनियन यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से अगर कोई फैसला लिया गया है तो उसको हर बार कानूनी चुनौती देना ठीक नहीं है। इससे देश में अराजकता का माहौल होता है। गौरव, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। गौरव, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी टिप्पणी इस फैसले को सुनाने के दौरान। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी टिप्पणी है, क्योंकि अगर जो राज्य की, देश की संप्रभुता का मामला हो, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला हो, ऐसे में जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के पास ये शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिकॉग्नाइज करते हुए कहा है कि अगर कोई फैसला राज्य के लिए केंद्र द्वारा लिया जा रहा है और उसको बार बार कानूनी चुनौती दी जाए, हर बार ऐसा करना ठीक नहीं है। ये अराजकता की स्थिति पैदा करेगा और चूंकि देश संविधान के तहत चलता है और व्यापक मुद्दों पर, राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर केंद्र सरकार फैसला ले सकती है और संभवतः उसी के तहत ये फैसला लिया गया होगा। क्योंकि हमने देखा कि पूरे संचार माध्यम बंद किए गए थे, घाटी में कर्फ्यू रहा था और जिस तरह से फोर्सेस के जो डिप्लॉयमेंट किए गए थे उसके बाद कुछ शिकायतें जरूर आई थी, लेकिन एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए जाहिर तौर पर एक कड़ा निर्णय लेने की जरूरत केंद्र सरकार की तरफ से थी। और यही वजह थी कि हमने देखा कि जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया और उसके बाद बाइफर्केशन हुआ, यानी कि दो हिस्सों में जम्मू कश्मीर को बांटा गया, उस दौरान अगर आप देखें तो किसी भी तरह की कोई घटनाएं जो हैं सुनने में नहीं आई थी। और ये बहुत जरूरी था कि देश की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए और देश के एकीकरण यानी कि इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, ताकि एक देश एक संविधान के राह पर जो है वो भारत चल सके। लेकिन गौरव, जिस तरह से अभी पूरे फैसले के दौरान ये जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी जा सकती है, इसको जरा बताइए कि केंद्र के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये अपने आप में बहुत कई लोगों को सीधे सीधे जवाब है, हर फैसले को चुनौती देना योग्य नहीं है, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश ने कही है कि जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रपति की भूमिका के तहत राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। याचिकाकर्ताओं की दाखिल खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि संसद या राष्ट्रपति की घोषणा उद्घोषणा के तहत किसी राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं जो अभी आदेश पढ़ा जाना शुरू किया है वो वैलिडेट करता है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के तहत जो अनुच्छेद 370 हटाया, जिस प्रक्रिया पर याचिकाकर्ताओं द्वारा सवाल खड़ा किया गया कि ना ही इसमें जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को शामिल किया गया, ना ही देश की संसद को इसमें शामिल किया गया और राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा अनुच्छेद को जो है वो निरस्त कर दिया गया, इतिहास में बदल दिया गया, वो कहीं न कहीं उसको लेकर अभी मुख्य न्यायाधीश अपना आदेश दे रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के इशू को और केंद्र सरकार की व्यापक शक्तियों को राष्ट्रीय मामलों में रेखांकित किया है, आदेश फिलहाल उसी ओर जो है यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। और एक और टिप्पणी जो महत्वपूर्ण की गई है, इसमें यह कहा गया है कि केंद्र राष्ट्रपति की भूमिका के तहत राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन इस दौरान याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक और बड़ी खबर है नैना। आप देखिए, विलय के बाद जम्मू कश्मीर का अलग संप्रभुत्व नहीं, यानी संप्रभुत्व तो राष्ट्र का होता है और राष्ट्र है भारत, राष्ट्र है हिंदुस्तान, तो जम्मू कश्मीर का अलग से संप्रभुत्व कैसे? गौरव, ये एक और बहुत बड़ी टिप्पणी है इस फैसले को सुनाने के दौरान।
जी देखिए, इस आदेश में एक अहम लाइन है कि भारत में शामिल होने के बाद जम्मू कश्मीर ने संप्रभुता का तत्व बरकरार नहीं रखा। और देखिए, जाहिर तौर पर एक राष्ट्र या एक देश जो है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखना, और ये संविधान के तहत चलने वाला देश जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है संप्रभुता को बनाए रखना। जम्मू कश्मीर में संप्रभुता बरकरार नहीं रखी, यानी कि वो देश के हिस्से के तौर पर नजर नहीं आया। वहां पर पाकिस्तानी झंडे लहराए गए, वहां पर। लेकिन जिस तरह से फैसला सुनाया जा रहा है उसके मायने क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट जीएम शाहीन जी समय हमारे साथ में हैं। जीएम शाहीन जी, इस बीच जो बहुत बड़ी टिप्पणी की गई, और के सिन्हा साहब भी हमारे साथ में हैं, लेकिन सर शाहीन साहब, जिस तरह से अहम टिप्पणी की गई, जम्मू कश्मीर की संप्रभुता का तत्व बरकरार नहीं रखा गया, ये अपने आप में किस तरह से महत्वपूर्ण टिप्पणी हो जाती है? नहीं, बिल्कुल इस चीज को मानते हैं हम लोग, और एक सही बात उन्होंने कही है। जब तक कि मान्यता को बरकरार नहीं रखा जाएगा तो कोई भी फैसला जो होता है कि उसमें सभी जो कानूनी मामलात है उन चीजों को देखा जाता है। और इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो अभी बता रहा है, जो वर्डिक्ट आ रहा है, तो उसमें उन्होंने इन्हीं चीजों को दोहराया है जो उस वक्त, क्योंकि एक तो आपका जो पावर्स है वो पार्लियामेंट के पास चले जाते हैं। और साथ जुड़े हुए हैं गौरव, आपने इशारा किया, क्या और बड़ी खबर आ रही है? देखिए, बहुत बड़ी बात मुख्य न्यायाधीश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अपने आदेश के तहत कह दी गई है कि विलय के साथ जम्मू कश्मीर ने अपनी पूरी संप्रभुता छोड़ दी। यानी कि जब राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और ये इच्छा जाहिर की कि जो कबीलाई लड़ाके उस वक्त कश्मीर पर जिन्होंने हमला किया था पाकिस्तान के समर्थन से, और जब राजा हरि सिंह ने कह दिया कि वो भारत में विलय की इच्छा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो, उस विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर की अपनी इंडिविजुअल संप्रभुता जो है वो खत्म हो गई। यानी कि उसकी संप्रभुता का मायना भारत के संप्रभुता के साथ हो जाता है, विलय हो जाता है। जम्मू कश्मीर का अलग से जो संप्रभु होना या उसके अस्तित्व का कोई मायने नहीं रह जाता है। ये एक बहुत बड़ी लैंडमार्क टिप्पणी है और ये हमेशा याद रखी जाए कि अगर गौरव, आप जो बात बता रहे हैं उसकी बड़ी बात अपने दर्शकों को बताएं। आर्टिकल 1 और 370 में जम्मू कश्मीर का बड़ा हिस्सा है, और इस बात का जिक्र खुद इस फैसले के साथ में सुनाते हुए यहाँ पर आप देखिए सीजीआई कर रहे हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दलील, बहुत बड़ी टिप्पणी हो जाती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर गौरव जो आप बात कर रहे हैं, एक बार फिर से उसे देश के सामने रखिए, क्योंकि बार बार महाराजा हरि सिंह ने उस दौरान क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसको लेकर बार बार बयानबाजियां हुई हैं। तो सीजीआई का ये कहना कि प्रोक्लेमेशन ऑफ महाराजा स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल सुपरसीड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। could ratify the Constitution of India. देखिए, इससे बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों के लिए मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था, जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा बहस हुई कि क्या 370 जो है वो जम्मू कश्मीर के अस्तित्व के साथ जुड़ गया था, क्या उसको हमेशा रहना था। मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश में कह दिया है कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था और वो एक समय सीमा के साथ था, और अब 370 का प्रावधान जो है वो खत्म हो गया है क्योंकि वो अस्थायी था। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, इसका संविधान भारत के संविधान के तहत था। दर्शकों के लिए समझा दें कि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान जो है वहां की संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था और वही लागू होता था। लेकिन जब एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान की बात होती थी, और तो जम्मू कश्मीर के संविधान के हवाले से वहां के तमाम हटाने की बात हुई थी, तब किस तरह से इस बात का जिक्र बार बार किया गया गौरव कि 370 जो है वो अस्थायी है, वो स्थायी नहीं बल्कि उससे कुछ समय के लिए उसको लागू किया जाना था। और इसी टिप्पणी का जिक्र, इसी बात को कोर्ट एक बार फिर से कोर्ट में किया गया सीजीआई की तरफ से। गौरव और पुलकित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। पुलकित, ये बहुत बड़ी टिप्पणी, 370 अस्थायी प्रावधान था, सीजीआई ने ये बात कही थी, यानी इसे हटाना ही था एक दिन, और इसीलिए शायद ये हटाया गया। क्या और बड़ी जानकारी आपके पास? आपको याद होगा कि जिस समय अमित शाह पार्लियामेंट में ये बिल पेश कर रहे थे या इसका जिक्र कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि पुरानी सरकारें 370 को स्थायी तौर पर पेश करती रही, लेकिन 370 अस्थायी है, और तमाम चीजें उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर रखी भी थी। और वही बात अब सुप्रीम कोर्ट में ये साफ हो रही है कि किस तरीके से 370 जो है वो अस्थायी प्रावधान था। यानी कि पिछले कुछ सालों की बात करें, यानी कि 2018 से पहले की, तो जिस तरीके से 370 का इस्तेमाल किया गया
जम्मू कश्मीर के लिए, उसके ऊपर सवाल खड़े हुए। अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट पढ़ा जा रहा है उससे साफ हो गया है कि केंद्र सरकार का ये फैसला या जिस तरीके से 370 हटाया गया था गौरव बड़ी उसको अपडेट लेकर दे जो रहे हैं, सवाल फिर दोबारा रुक करते हैं। गौरव क्या अपडेट है आपके पास? To the state of Jammu and Kashmir. Article 371(d). देखिए, सबसे बड़ी बात मुख्य न्यायाधीश के आदेश से निकलकर ये आई है कि उन्होंने ये कह दिया है कि जो जम्मू कश्मीर का संविधान था वो भारत के संविधान के तहत आता था, यानी कि उसके अधीन था। और ये कहना कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो ये कह दे कि वो जब भारत के संविधान या भारत की संप्रभुता या भारत के से एक अलग मायने रखता था, ये बिल्कुल गलत था। दूसरा एक चीज मैं आपको बता दूं कि 370 को हटाना और सुनवाई के दौरान इस बात को लेकर चर्चा करना, इतिहास में जाने से बेहतर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने यह पूछ दिया था कि लोकतंत्र बहाली के लिए क्या किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इशारा कर दिया था कि अब जो हो गया वो हो गया। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कैसे होंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, इसको लेकर ज्यादा चर्चा हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये बात आगे बढ़ते हुए नजर आई थी। और अब देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर एक महत्वपूर्ण बात मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है, यानी कि आपके लिए अलग से कोई इकोसिस्टम नहीं काम करेगा, आपके लिए अलग से कोई कानून काम नहीं करेगा। आपकी संप्रभुता मतलब भारत की संप्रभुता, और आप भारत के ही सीमाओं के अंदर बसा एक राज्य है, जाहिर तौर पर सीमावर्ती राज्य है, लेकिन आप उसके लिए एक अलग स्टेटस, अलग तरीके के नियम कायदों की मांग नहीं कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने यहां पर यह पूरी तरह से साफ कर दिया है कि आर्टिकल 370 को अच्छा, एक बड़ी बात फिर से मैं दर्शकों को बता दूं, एक और बड़ी बात, आर्टिकल 370 को निरस्त करने से पहले संविधान सभा की सिफारिश की आवश्यकता नहीं थी। तो एक बड़ी मुहर मुख्य न्यायाधीश की तरफ से अपने ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी, संविधान सभा की सिफारिश की जरूरत नहीं थी। जीएम शाहीन, ये जो बातें गौरव बता रहे हैं, ये जो सियासत चल रही थी, जो प्रोपेगेंडा मशीनरी काम कर रही थी कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, 370 पर फैसला लेने से पहले उन सभी सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट की ओर से और ध्वस्त कर दिया उन सभी सवालों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से। देखिए, बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि आर्टिकल 370 क्योंकि एक टेम्पररी मामला था और उससे वो तो एक ये क्लियर बात थी कि पहले से ही तय था कि 370 को एक दिन जो है वो हटना ही था। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीज का हवाला देते हुए कहा है, क्योंकि हम जब वन नेशन वन इंडिया की बात करते हैं तो इसमें दो कानून लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। अभी जो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो अभी वेडिक्ट आ रहा है उसमें उन्हीं चीजों का उन्होंने रेस्पॉन्स दिया है। वही बात उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी था और ये जो सभी चीजें जो बताई जा रही थी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, उसका कोई माने नहीं रखता। अपने दर्शकों को बता दें, सीजीआई की तरफ से जो अहम टिप्पणी की गई उसमें ये बहुत बड़ी बात कही गई है, विधानसभा भंग होने पर राष्ट्रपति को कई तरह के अधिकार हैं, 370 हटाने से पहले संविधान सभा की जरूरत नहीं। अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी हो जाती है। क्या कुछ चल रहा है, क्या कहा जा रहा है, सुनिए आप भी। Is a valid exercise of constitutional power. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that the power under Article 371(d) cannot be issued to apply all the provisions of the Constitution to the state of Jammu and Kashmir. We have held that all provisions of the Constitution can be applied to Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 371(d). The power under Article 371(d) can be used to apply one provision, more than one provision, an entire तो part of the कोर्ट पे जो Constitution. सीजीआई टिप्पणी कर रहे हैं बता रहे गौरव, कुछ बड़ी खबर बता रहे हैं गौरव, क्या अपडेट है? The provision does not make a distinction between one or बिल्कुल, देखिए मुख्य न्यायाधीश ने एक बड़ी बात कह दी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है अपने आदेश में कि अनुच्छेद 370 को हटाने का एक ही मकसद था, जम्मू कश्मीर का भारत में एकीकरण, यानी कि पूरा देश जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सूत्र में बंधा रहे, एक ही अखंडता संप्रभुता जो है वो बनी रहे, और उसके लिए जरूरी था कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाए। गौरव, आपने बहुत बड़ी बात कही है, यानी अब किस तरीके से जो फैसला आखिरी आएगा वो किस दिशा में आएगा, क्या आएगा, ये सब कुछ लाइनें उसी ओर। बहुत बड़ी बात है कि 370 को हटाने का मकसद जम्मू कश्मीर का एकीकरण है। और गौरव, क्या ये मान लें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ये कहा जाना जो सीजीआई बोल रहे हैं 370 के अस्थायी प्रावधान, टेम्पोररी अरेंजमेंट था, खत्म करने का अधिकार प्रेसिडेंट को, संविधान सभा की सिफारिश की जरूरत थी नहीं,
संविधान सभा भंग होती है तो भी प्रेसिडेंट फैसला ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग यानी दूसरे स्टेट से कुछ अलग अधिकार की मांग करना यह भी ठीक नहीं है। केंद्र के फैसले पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। और एकीकरण की बात आए तो सरकार ऐसा फैसला लेगी, क्या ये मान ले? अभी तक ये सबसे बड़ी बातें हैं गौरव। देखिए, एक बड़ी लाइन मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश में कह दी है। 370 को लेकर, अनुच्छेद 370 को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का आदेश संवैधानिक तौर पर वैध प्रक्रिया थी। तो कहीं ना कहीं एक सुप्रीम मोहर कम से कम मुख्य न्यायाधीश ने अपने हिस्से वाले आदेश में लगा दी है कि राष्ट्रपति द्वारा 370 को हटाने का आदेश पूरी तरह से वैलिड और संवैधानिक था। संविधान की धज्जियां उड़ा दी। संवैधानिक तौर पर वैध फैसला ही नहीं है। अब लीजिए, सीजीआई ने यह कह दिया, जो 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी जिसकी अध्यक्षता वो कर रहे थे, उन्होंने कह दिया ये पूरी प्रक्रिया वैलिड है, संवैधानिक प्रक्रिया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर 370 को लेकर राष्ट्रपति द्वारा जो 370 निरस्त करने का आदेश था वो संवैधानिक तौर पर वैध प्रक्रिया था और उस पर मुहर लगा दी है। 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरह से इस पूरे फैसले को चुनौती देती हुई जो तमाम याचिकाएं थी उसका ये सीधा जवाब, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर मुहर है और ये पूरी तरह से संविधान के अधीन वैध प्रक्रिया के तहत ये निर्णय लिया गया। और जो तमाम लगातार हम देख रहे थे कि जो कई राजनीतिक दल है, कई नेता इसका विरोध कर रहे थे और ये सीधे टारगेट कर रहे थे कि संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, लेकिन वो पूरी संविधान के तहत फैसला था। गौरव, The next issue is the challenge to CO 272. देखिए, एक बहुत बड़ी बात मुख्य न्यायाधीश ने कह दी है, एक बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि अबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370 को हटाने को जो की प्रक्रिया थी वो दुर्भावना से ग्रसित नहीं थी। जबकि याचिकाकर्ताओं ने ये कहा कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वो 370 को हटाएगा और ऐसे में एक राजनीतिक जो है कदम था 370 हटाना। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने साफ कह दिया है कि अबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370 को हटाना जो है वो दुर्भावना से ग्रस्त नहीं था। ये एक ऐसा कदम था जो जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए, भारत में एकीकरण के लिए बहुत जरूरी था। और एक बड़ी टिप्पणी और उन सभी याचिकाएं जो कि सरकार के फैसले के खिलाफ, राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ पहुंची थी, उनको एक सीधा वन लाइनर जवाब दे दिया गया है कि कहीं से भी ये फैसला राजनीति से पूर्ण नहीं, दुर्भावना से ग्रसित नहीं, बल्कि राष्ट्र के हित में लिया गया था। शंकरी प्रसाद सिंह, सज्जन सिंह, निश्चित तौर पर गौरव, और जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बार संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे, प्रेसिडेंशियल पावर को लेकर संविधान सभा का जिक्र हुआ था, उन सभी सवालों का जवाब आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की ओर से आ रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 5 अगस्त 2019 के बाद आज की तारीख आप याद कर लीजिए, जो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में एक तरीके से लिखी जाएगी। 11 दिसंबर 2023 आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। संवैधानिक तौर पर बिल्कुल ठीक प्रक्रिया है 370 को निरस्त करना। बिल्कुल, और इसको लेकर ये बहुत अहम हो जाता है। जम्मू कश्मीर को लेकर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एक तरफ यहाँ पर अलग तस्वीर है, हमारे साथ में अपने दर्शकों को भी बताते चले कि सीजीआई की तरफ से जो फैसला सुनाया गया उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि 370 हटाने को हम पक्षपात नहीं मानते, संविधान के अधीन ही ये निर्णय लिया गया और देश को एकजुट करने के लिए, ये कहा जाए जम्मू कश्मीर को हिस्सा बनाते हुए एक बहुत अहम फैसला लिया गया है। सीधे रुक कर लेते हैं साहिल सोहेल श्रीनगर से हमारे साथ में। साहिल, बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ी टिप्पणी से कही जो है सीजीआई की। देखिए, बहुत बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है और बहुत बड़ी बातें जो है इसमें निकल के आ रही है। ये कि आर्टिकल 370 एक टेम्पोररी प्रोविजन था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति के पास पावर्स थे धारा 370 की क्लास 3 के अंडर कि वो एक नोटिफिकेशन जारी करे और इसको 370 को हटाने का जो है वो केयर करे। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जो कि राजनीतिक दल और पेटिशनर्स जो कि खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जैसे हमने देखा पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस लगातार ये बात कह रहे थे कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, संविधान के हिसाब
से धारा 370 को हटाया नहीं गया था। और यही एक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट हमने देखा कि 16 दिन की जो हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में चली थी, पिटिशनर्स की तरफ से ये सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रूट जो था वो अपनाया नहीं गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ये बहुत क्लियर किया गया कि जो संविधान के हिसाब से ही इस पूरे मामले को लिया गया है और 1 by 1 वो तमाम चीजें बताई गई जिन पे जो पिटिशनर्स ने अपना दाव चलाया था। ये कंकर्रेंस की बात कही थी, जम्मू कश्मीर के गवर्नर की जो उन्होंने उस वक्त अपनी इजाजत दी थी 370 के हटाने के लिए, उस पे भी सवालात पिटिशनर्स ने खड़े किए थे। उस पे भी जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक दल है उन्होंने सवालात किए थे। लेकिन अभी तक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो जजमेंट की लाइंस पढ़ी जा रही है उनसे ये साफ अब हो गया है कि उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की आर्टिकल 370 जो है वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो राजनीतिक दल कह रहे थे कि 370 जो है वो एक परमानेंट फीचर उसने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में अपना बना लिया है। लेकिन तभी हियरिंग में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात कही थी कि अगर 370 जो है परमानेंट था तो फिर ये पार्ट 11 जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है 11 में इससे क्यों ये स्पष्ट हो जाता है कि जम्मू कश्मीर के ही कई विपक्ष के नेता थे जो लगातार उस समय से लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आज फैसले का इंतजार तो कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के फैसले को बार बार ये कहा जा रहा था कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन उसी संविधान के अधीन ये पूरा फैसला था। लोगों की प्रतिक्रियाएं अगर आप जान पाए वो उनका क्या कहना इस फैसले पर। देखिए फिलहाल अभी प्रक्रिया जो है जो स्टेटमेंट्स है पॉलिटिकल पार्टीज के या आम लोगों के वो भी सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के और जो है चीफ जस्टिस के द्वारा अभी फिलहाल जजमेंट पूरी जो है पढ़नी बाकी है। क्या निकल के सामने आ रहा है जो साफ, ये तो पूरी तस्वीर साफ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से संविधान के हिसाब से सोहेल मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच आपके पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे इशारा करके पूछिए, अगर वो बातचीत कर पाए तो आप फिर हमें इंडिकेट करिएगा। आपके पास हम आएंगे कि जो ये फैसला आ रहा है उस पर लोगों की क्या राय है। लेकिन उससे पहले के सिन्हा साहब, जो अभी तक आपने टिप्पणियां सुनी है, बहुत सारी बातें हुई 370 को लेकर, संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे, संविधान की धज्जियां सरकार ने उड़ा दी, प्रेसिडेंशियल पावर को लेकर। अब तो जो बातें जो सीजीआई कह रहे हैं ये एक तरीके से शायद इसके बाद तो 370 का नाम भी नहीं लेना चाहिए, जो लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे थे आज के बाद। अनुराग जय हिंद। आज 11 दिसंबर 2023 का मेरे सीने में इतने गर्व से फूल जाते हैं कि जो चीजें हमने 40 साल जमीन के ऊपर में देखी थी, टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बार बार जिक्र 370-35 से, और हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी, अपने लोगों की कुर्बानियां दी जो लड़ते रहे उसकी सुरक्षा, उसकी अखंडता के लिए। उसको ये कह देना कि खंडित कर दिया क्यों, कुछ प्रोविजन के अंदर में, और उसके लिए आज भी ये देखिए, और सुप्रीम कोर्ट के ये जो फैसले आए हैं 11 दिसंबर को और 5 अगस्त 2019 भी, उस समय जो चीजें हुई थी, 4 साल से भी ज्यादा का समय लग गया जब हमें इस तरह की पक्की मोहर लगी है। आज पक्की मोहर, पूरा अखंडित भारत को जो खंडित कर दिया इन्होंने, अखंड बनाया है इस खंड खाल के अंदर में। और ये देखिए, ये यहाँ ही नहीं, इसका रिपरकशन नॉर्थ ईस्ट से भी है, ये पूरे भारत से। जब आप कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक यदि हम सोचते हैं, क्योंकि अखंडता के अंदर में खंडित भारत का पीओके भी हिस्सा है, वो स्टेप इससे भी आगे आएगा जब हम जम्मू एंड कश्मीर को हम जब कहते हैं कि ये दोनों को जिस तरह से न्याय की प्रक्रिया में, जिस तरह से संविधान की प्रक्रिया में बाय प्रॉक्सी जब इसको किया गया, और ये 1947 से चल रहा है, क्योंकि ये इतनी बड़ी लड़ाई है किसी भी नेशन स्टेट के लिए, जो कि एक अपने तरह से अनुसंधान का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और देखिए किस तरह से चीजें आप बदली, और इसको आप आज की जो प्रेजेंट जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो लोग सत्ता में आसीन है, उन्होंने ये लड़ाई इतनी बेखूबी से लड़ी जो हम 40 साल सत्ता में जो लोग बैठे उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन विपक्ष की तरफ से बार बार यही टारगेट करते हुए कहा गया कि भाई ये तो संविधान के का विरोध करते हुए संविधान के खिलाफ एक्शन लिया। गौरव कुछ अपडेट दे रहे हैं जी। गौरव,
बिल्कुल, देखिए मैं आप दर्शकों के लिए बता देना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे, उन्होंने उस बेंच ने जो है वो अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर के जो राष्ट्रपति के आदेश है उस पर अपनी एक मोहर लगा दी है। इसे सुप्रीम मोहर माना जाएगा क्योंकि जो आदेश पढ़े भी जाने तो क्या ये मान ले गौरव जो आपने बात कही एक बार फिर से रिपीट करिएगा। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 370 निरस्त करने को संवैधानिक ठहरा दिया है। मान ले ये पूरी बेंच का फैसला, एक बार फिर से गौरव जानकारी दीजिए। बता दूं कि हालांकि जो आदेश हैं वो 3 अलग अलग पढ़े जाने हैं, लेकिन चूंकि आदेशों का निष्कर्ष जो है वो एक रहने वाला है, तो ये माना जा सकता है कि अनुच्छेद 370 को हटाने का जो आदेश था उस पर सुप्रीम मोहर लग गई है। उसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से संवैधानिक माना है और कानूनी रूप से सही माना है और ये कहा है कि संविधान सभा, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के प्रति गौरव मैं फिर से आपको रोक रहा हूं, चूंकि आप सारा अपडेट दे रहे हैं, एक खबर आपने सबसे पहले दी है तो अलग अलग फैसला बाद में, लेकिन ये सार मान ले, निष्कर्ष मान ले इस संवैधानिक बेंच के फैसले का। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये एक तरह का सार है और मैं आपको बता दूं कि एक तरीके का जिसे कहा जाता है पूर्वाभास होता है। जब पूरी सुनवाई चल रही थी तो कहीं ना कहीं जो पूरी सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी वो ज्यादा इतिहास टटोलने के जम्मू कश्मीर के भविष्य की ओर नहार रही थी और इसी बीच बड़ा अपडेट आ गया है। मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा अब ये देखिए गौरव ने बड़ी जानकारी दे दी, 370 हटाना फैसला तो संवैधानिक था ही, चुनाव की भी तारीख सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दी गई। और देखिए अभी जो कुछ समय पहले अमित शाह की तरफ से सीटों की भी बात हुई थी वो यानी कि दूरदर्शिता दिखाता है राकेश, सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत ने बताई। और अब ये देखिए एक एक खबर सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत ने, केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर है। हर खबर सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत आप तक पहुंचा। और 30 सितंबर 2024 चुनाव यानी पहले आम चुनाव, उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव।